Good morning everyone. In last lecture or last video we have studied 7 principles of management which is given by Henry Fayol. In this today's video we will study the rest of the principle of management which is given by Henry Fayol. Now this is the 8th principle which is known as principle of remuneration. Appropriate remuneration to staff or employees is a principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. So appropriate remuneration to a staff or employees को appropriate remuneration देना, staff को appropriate remuneration देना, ये इस principle में बताया जाता है. इससे क्या होगा, अगर आपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन दिया तो आप उस स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक देखोगे. और अगर आपने उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दिया उनके स्किल के हिसाब से, उनके एक्सपर्टाइज नॉलेज के हिसाब से, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे. तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे एम्प्लॉयज़ और अच्छे स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे तो आपको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन उन स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को देना होगा. द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल. द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, और जो आप रेम्यूनरेशन फिक्स करोगे यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द स्किल, देयर एक्सपर्टाइज, देयर नॉलेज, टेन्योर, cost of living, market trend, profitability of organization, etc. Okay, so in this principle Henry Fayol try to focused on remuneration, means the employee or staff should be given proper remuneration according to their skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of organization, etc. Now next, moving toward the next principle, that is principle of scalar chain. Scalar chain means the hierarchy of authority. Hierarchy means like a pyramid. It moves from top level to the lower level for the purpose of communication. For any communication, you have to follow a scalar chain. Scalar chain means there is a hierarchy of authority, means any information you have to pass from top level to lower level for the purpose of communication. This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame large scalar chain which is time consuming. पहले organization larger scalar chain follow करती थी जिसके वजह से ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता था. For example, a general manager informs the decision to respective functional manager. Then the functional manager will pass it to the supervisor. The supervisor will inform it to the foreman and so on according to the level of authority. For avoiding this longer chain and to take a speedy decision, cross communication or direct communication is followed. तो ये जो लंबा चेन है उसको अवॉइड करना है तो स्पीडी डिसीजन के लिए आपको क्रॉस कम्युनिकेशन फॉलो करना होगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉलो करना होगा विच इज नोन एज गैंग प्लान. फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी. एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो यूजिंग गैंग प्लान तो उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना होगा मेन अथॉरिटी से. इन द अबव डायग्राम, सी वन डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. In the above diagram, the communication between D and P should flow through proper hierarchy. तो ये जो communication है D और P के बीच में, तो it should flow through a proper hierarchy, but to avoid delay, ये जो D and G आएगा, तो but to avoid delay or in emergency situation there will be a direct communication. It is termed as gang plan. Clear all of you? Now come to the next topic or next principle, the principle of order. In this principle, a place for everything and everything in its place. This principle based on a place for everything and everything in its place, human resources and material should be in the right place at the right time for a maximum efficiency. तो इस principle में human resources should be placed at the right
एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल बताना चाहते हैं कि हर चीज़ को, मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेस हो, शुड बी प्लेस इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस एंड ऑन द राइट जॉब। तो जो मटेरियल है वो राइट प्लेस राइट टाइम पे यूज करोगे, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनको राइट प्लेस पे राइट जॉब दोगे। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? नाउ कम टू 11th principle, that is principle of equity. Under this principle, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट। इस प्रिंसिपल में मैनेजमेंट फेयर होने चाहिए और फ्रेंडली होने चाहिए। किसको लेकर? सबॉर्डिनेट्स को लेकर। सबॉर्डिनेट मीन्स करेक्ट, एम्प्लॉय। While dividing the work, delegating the authority, delegating means transferring the authority, deciding the monetary term etc. there should not be any discrimination between the employees. तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल फोकस कर रहे हैं कि जब आप कोई भी काम डिवाइड करके दे रहे हो, या फिर आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आपका मॉनेटरी टर्म कुछ डिसाइड कर रहे हो, लाइक उनका सैलरी, ऐसे कुछ आप डिसीजन ले रहे हो, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखोगे एम्प्लॉयज़ के बीच में। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबॉर्डिनेट्स आर वर्किंग। तो उनके लेवल के हिसाब से आप उनको सैलरी या फिर उनको पावर और अथॉरिटी डेलीगेट करोगे। द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लाइक देयर आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और आपका पोजीशन मैनेजर का है, तो आपका जो पोजीशन होगा उस पोजीशन के हिसाब से आप उनको सैलरी और वेजेस पे करोगे। ऐसे नहीं कि ये इस डिपार्टमेंट का है तो इनका ये अमाउंट होना चाहिए या ये सैलरी होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट का है तो उनका अमाउंट या फिर उनका सैलरी ऐसे होना चाहिए। इट शुड बी सेम whether you are working in different department. Clear? This equity will help in avoiding conflicts in the organization. और इसके वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, वो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी रखते हो एम्प्लॉयज़ को लेकर, तो एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली काम करेंगे। जैसे एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जब आप रिक्रूट करते हो, किसी एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करते हो, तो मैनेजर शुड ऑलवेज इंश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। तो जब आप किसी का अपॉइंटमेंट देते हो तो मैनेजर को हमेशा एम्प्लॉयज़ को एश्योरिटी देना चाहिए कि आपका जॉब स्टेबल है या फिर आपको आपके जॉब को लेकर कोई सिक्योरिटी है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग दी एम्प्लॉयज़। लाइक सपोज अगर आप किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट देने के टाइम पे या फिर आपने अपॉइंटमेंट दे दिया तो उसी टाइम पे आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा कि दैट यू आर अंडर प्रोबेशन फॉर 1 ईयर, आफ्टर दैट यू विल बी परमानेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, आप उस पर्सन के माइंड में बिलोंगिंगनेस बढ़ा रहे हो, आप उसके मन में एश्योरिटी दे रहे हो कि आगे जाकर आपका जॉब सिक्योर है। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर वो अपने जॉब को लेकर इनसिक्योर है तो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएगा। तो आप जब भी एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करते हो तो वहाँ पर आप उनको जॉब को लेकर एश्योरिटी दोगे। Okay, that principle is known as principle of stability of tenure. Now next, insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimizes employees turnover. और अगर आपने job security दिया है तो जो employees होंगे वो आपके organization के अंदर ही रहेंगे, वो कोई दूसरे job के लिए नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आपके organization के अंदर ही काम करेंगे। Next principle is principle of initiative. Initiative refers to volunteering to do the work in an innovative way. Initiative means आप कोई काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो जो आप काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो उसी को इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे।
The freedom to think and work on new ideas encourages the employees to take initiative while working on given task. तो अगर आपने किसी को भी फ्रीडम दे दिया है कि आप न्यू आइडियाज़ को लेकर सोच सकते हो, न्यू आइडियाज़ को सोच सकते हो और अपने न्यू आइडियाज़ को बता सकते हो या फिर उसको अप्लाई कर सकते हो, तो इससे एम्प्लॉयज़ एनकरेज होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमेशा न्यू थिंकिंग लेकर आएंगे या फिर इनोवेटिव वेव्स में अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे. दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थरो डिसीजन ऑन दोज न्यू आइडियाज़. तो ये जो इनोवेशंस एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं उसको उन मैनेजर को समझना चाहिए या फिर वो आइडियाज़ को मैनेजर को समझना चाहिए और समझने के बाद में उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे. अगर वो डिस्कशन उनको ठीक लगा तो वो उस न्यू आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग healthy organizational culture. And last principle is principle of Aspirate D Corps. Aspirate D Corps ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? टीम स्पिरिट. हेनरी फेयोल हैज़ गिवन एम्फोसिस ऑन टीम वर्क. कोई भी काम अगर आप अकेला करना चाहते हो तो कहीं पर भी ये काम या फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करके रखे हैं, गोल्स या फिर कुछ आपने एम बना कर रखा है, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा. तो आपके जो एम्स होंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क को लेकर ही पूरा किया जा सकता है. तो हेनरी फेयोल हैज़ गिवन एम्फोसिस ऑन टीम वर्क. Aspirate D Corps means union is strength. Running any organization is a group activity and human resources are valuable assets of the organization. If all employees are working as a union and with mutual trust, the difficulty can be solved quickly. अगर एम्प्लॉयज़ यूनियन में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट को लेकर काम कर रहे हैं, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज हो रहा है वो डिफ़िकल्टीज़ को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो. देयरफॉर अ लीडर, अ मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट. Therefore, a leader, a manager should create a team spirit among the employees to achieve organizational goal. The above 14 principles of Henry Fayol are very useful to manage the organization. अभी आपने ये जो 14 principles को देखे हैं, आप अब फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो 14 principle है ये सब organization में यूज़फुल है. आप कोई भी एक principle को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, एक principle को भूल जाओगे या फिर एक प्रिंसिपल को कम इम्पोर्टेंस दोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है आप अचीव नहीं कर पाओगे. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये 14 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा. These are also supportive to function of management. जो function of management है like planning, organizing, directing, controlling, ये उनको भी support करता है. This principle are very logical and therefore are applicable in modern management era. ये लॉजिकल भी है तो ये आप मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में भी आपको ये प्रिंसिपल यूज़फुल है और आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट दिखाई दे रहा है ब्लू बॉक्स में. डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ योर फेवरेट गेम लाइक क्रिकेट. You will find each activity is based on Fayol's principle of management. Take the help of your teacher. अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए आप वो हेल्प ले सकते हो और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं. तो जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपके असाइनमेंट जो मैं भी आपको दे रही हूँ आपको वो गेम एक्टिविटी को लेकर असाइनमेंट पूरा करना है. आपको ये 14 प्रिंसिपल हर एक्टिविटी में दिखाई देगा. वो एक्टिविटी को वहाँ पर आपको गेस करके बताना या लाइक अ पैराग्राफ आपको वो मुझे लिखकर दिखाना है. तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये सारा काम कर रखोगे. 14 प्रिंसिपल चाहे आपको चाहिए तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो क्रिकेट के या फिर आप कोई और एग्जाम्पल लेकर मुझे ये 14 प्रिंसिपल को डिस्कस करके बताओगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? In next lecture, we will discuss Frederick Winslow Taylor scientific management theory. Thank you.